Okay, students, today we will start the next chapter, chapter 13, that is photosynthesis in the higher plants. All animals, including the human beings, they depend on the plants for their food. Students, हमने photosynthesis पहले भी पढ़ा है. Photosynthesis means कि how the plants they synthesize their food in the presence of the sunlight. It is photosynthesis, that is, students, plants are synthesizing, they are manufacturing, they are making the food in the presence of light. And all living organisms, directly or indirectly, they are depending on the plants for their food. In this chapter, students, we will study in detail about the process of photosynthesis, the early experiments that helps us to understand the process of photosynthesis, the early experiment that led to the gradual development in our understanding of the photosynthesis, then what are the various raw materials that the plants require for this process, and ultimately what do we get at the end of photosynthesis, and about the various factors which influence the rate of photosynthesis. In today's class, or in the first lecture, students, we will study about the history of photosynthesis, and we will study about the early experiments, and then we will also study about the site of photosynthesis. तो सेल के अंदर वो कौन सी जगह है, कौन सा ऑर्गेनेल है जहाँ पे photosynthesis होता है. So let's start the very interesting topic, that is photosynthesis. Okay, students, photosynthesis is a physico-chemical process by which the green plants they use the light energy or the solar energy to synthesize the organic compound. Photosynthesis is the basis of life on the earth. Student, आप ये diagram देख सकते हो. So here is a plant. The plant requires sunlight because it is photosynthesis. The process takes place in the presence of sunlight. Then it needs carbon dioxide and the water. And ultimately what it is resulting, it results in the formation of oxygen and the food. And the food which is produced, that is the sugar. Okay. सो फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और लाइट एनर्जी जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ द ऑक्सीजन. सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिस ऑफ लाइफ है ऑन द अर्थ. All living forms they depend upon the sunlight for energy, and photosynthesis is the primary source of all food on the earth. क्योंकि photosynthesis क्यों important है? What is the importance of the photosynthesis? So photosynthesis is important because of the two reasons. First reason ये है students कि photosynthesis जो है it is the primary source of all food on the earth. सो प्राइमरी सोर्स जो है फूड का वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और हमें फूड बना के देंगे. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है फॉर द फोटोसिंथेसिस इज़ दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. सो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम अपनी रेस्पिरेशन के लिए, अपनी ब्रीदिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. राइट? ओके. First of all, students, we will discuss about the various experiments that are related with the photosynthesis, and it is very interesting to learn about those very simple experiments, students, that led to the gradual development in our understanding of the process of photosynthesis. So first of all, we will do the first experiment, that is known as variegated leaf experiment. स्टूडेंट्स, हमने वेरीगेटेड लीव्स देखी हैं जिसके अंदर ग्रीन होता है, येलो होता है, वाइट, हमें अलग अलग पैचेस नज़र आते हैं, तो उसको हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं. उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं वो होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया हमने, स्टार्च फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है. इन वी हैव टेकन द वेरीगेटेड लीफ. सो दिस इज़ अ वेरीगेटेड लीफ. हम वेरीगेटेड लीफ भी ले सकते हैं और लीफ को हम पार्शियली कवर कर सकते हैं विद द ब्लैक पेपर, एंड दिस लीफ इज़ एक्सपोज टू लाइट. तो उसके बाद हमने देखा उस लीफ को हमने टेस्ट किया फॉर द स्टार्च.
सो इट वॉज शोन कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पार्ट वेरीगेटेड लीफ का ग्रीन पार्ट है, जब हमने इसको स्टार्च टेस्ट किया, वी कैन डू द स्टार्च टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो स्टूडेंट्स, आयोडीन क्या करता है, जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो आयोडीन जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो हमने देखा कि जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट है, वो ग्रीन पार्ट जो है वो सारा स्टार्च टेस्ट में वो इफेक्ट हुआ, वो ब्लू ब्लैक हो गया। अदरवाइज जो पोर्शन हमने पेपर से कवर कर देते हैं, या जो येलो पार्ट है वेरीगेटेड लीफ का, उसमें जो स्टार्च टेस्ट है वो नेगेटिव रहेगा, वो कलरलेस रहेगा। सो इससे हमारा क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स। जो लीफ का, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। सो दिस इज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। Second is half leaf experiment. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमारा सेकेंड जो रॉ मटेरियल है वी नीड, अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो ग्रीन पार्ट है जो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस हमारे पास हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, हमने एक प्लांट का जो लीफ है, हाफ लीफ जो है वो हमने दिस इज़ अ बॉटल, इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे, KOH सोक्ड कॉटन लिया। सो KOH क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाफ लीफ जो है वो बाहर है बॉटल के, और हाफ लीफ जो है वो बॉटल के अंदर, पार्ट ऑफ लीफ जो है वो एनक्लोज्ड है। इन द टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो, या जैसे यहाँ पर आप बॉटल देख रहे हो तो उसके अंदर हाफ लीफ जो है उसके अंदर इनक्लोज कर देते हैं। और इस बॉटल में वी हैव टेकन KOH विच इज़ वी हैव टेकन अ कॉटन विच इज़ सोक्ड इन KOH। सो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो लीफ का हाफ पार्ट है वो क्या है, एक्सपोज्ड है। सो इस सेटअप को हम लाइट में रखेंगे फॉर सम टाइम। सो इसको फिर देन लीफ को हम टेस्ट करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। हम देखेंगे जो लीफ का, हमने ये देखा जो एक्सपोज्ड पार्ट है लीफ का, जो बाहर है, जो बॉटल के अंदर नहीं है, इट विल शो पॉजिटिव फॉर द स्टार्च। वेरएज जो ट्यूब के अंदर या बॉटल के अंदर लीफ का जो पार्ट था उसके अंदर स्टार्च टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। सो इससे ये शो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज जो लीफ का हाफ पार्ट बॉटल के अंदर है उसमें KOH है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट विल नॉट गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट विल नॉट मैन्युफैक्चर द फूड। सो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सो स्टार्च टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो जो पोर्शन जो ट्यूब के अंदर है इट विल टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च, अदरवाइज जो बाहर पोर्शन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, और जो एक्सपोज्ड पार्ट है लीफ का वो क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। सो दिस शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। इसने बहुत सारे सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट करे 1733 से 1804 तक। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाया, आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक जार लिया, जार को हमने इन्वर्ट किया है, बेल जार है, उसके अंदर हमने एक कैंडल रखा, बर्निंग कैंडल, एक क्लोज्ड स्पेस बन गया बेल जार के अंदर, एंड उसके अंदर हमने एक माउस रख दिया। देन सिमिलरली जो हमने देखा कि माउस जो है थोड़ी देर बाद जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, और इवन जो माउस है इट वुड ऑल्सो सून सफोकेट इन द क्लोज स्पेस। तो उसमें क्या किया कि बेल जार में जो कैंडल, बर्निंग कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गया। सिमिलरली माउस ऑल्सो सफोकेटेड इन द क्लोज जार। देन व्हाट ही कंक्लूडेड दैट द बर्निंग कैंडल or the breathing animal is the mouse. Then he concluded that burning candle or breathing animal damage the air, वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एयर को डैमेज कर रही है। Then student what he did, नेक्स्ट उसने एक्सपेरिमेंट में ही टुक अ मिंट प्लांट, और उसने उसके अंदर एक मिंट प्लांट जो है उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, मिंट प्लांट लिया, और मिंट प्लांट को उसने सेम बेल जार के अंदर जिसमें माउस है और जिसमें कैंडल है, मिंट प्लांट को उसने सेम बेल जार के अंदर प्लेस कर दिया। एंड व्हाट ही डिड, ही फाउंड दैट द माउस ऑल्सो स्टेड अलाइव। ठीक है, कैंडल ऑल्सो कंटिन्यू टू बर्न। देन प्रिस्टले उसने हाइपोथेसाइज किया
कि प्लांट्स जो हैं वो रिस्टोर करते हैं। उसने उसको एक हाइपोथेसिस दिया उसने कि प्लांट रिस्टोर करते हैं द एयर, ठीक है, प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीडिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ब्रीडिंग एनिमल्स ने और या कैंडल जब बर्न होती है वो जो रिमूव कर रही है उसको कौन रिस्टोर कर रहा है, उसको प्लांट्स रिस्टोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करेंगे, मेन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि कैंडल जब बर्न हो रही है वो CO2 प्रोड्यूस कर रही है, और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो ऑक्सीजन दे रहा है। सो इस सेटअप में उसने देखा कि इसमें माउस जो है, माउस ऑल्सो स्टेड अलाइव एंड कैंडल ऑल्सो कंटिन्यू टू बर्न। सो उसने हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट जो है वो रिस्टोर करते हैं एयर को, वॉट एवर द ब्रीदिंग एनिमल्स एंड द बर्निंग कैंडल्स they remove. Okay, so this was a very famous early experiment which was performed by Joseph Priestley. Now, next is one more experiment that is by Jan, that is Ingenhousz, that is 1730 से 1799. So एक सिमिलर सेटअप है जो प्रिस्टले ने यूज़ करा था, बट यहाँ पर एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो कि उसमें डार्क और सेटअप को लाइट और सनलाइट में और डार्क में रखा। दैट इज जैन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट है 1730-1799. ही कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर एक सेटअप है। तो उसने कहा कि जो सनलाइट है दैट इज एसेंशियल टू द प्लांट्स फॉर प्योरीफाइंग द एयर, कि प्लांट्स जब एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सनलाइट जो है वो एक एसेंशियल है फॉर द प्लांट्स टू प्योरीफाई द एयर। तो उसने क्या किया, ये एक एक्वेटिक, आप ये सेटअप देखो, तो उसने एक एक्वेटिक प्लांट यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट लिया, दिस वन, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट जो है, लेट मी जस्ट enlarge it, now you can see. So students, एक्वेटिक प्लांट लिया, और एक्वेटिक प्लांट जो है उसमें हमने देखा कि जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो हमें बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट, और जबकि जो डार्कनेस में बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो सेम सेटअप को उसने लाइट सनलाइट में रखा और डार्क में रखा। तो उस पे बेस पे उसने प्रूव किया, इंजनहाउस ने प्रूव किया कि जो सनलाइट है दैट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर प्योरीफाइंग द एयर, ठीक है। सो ब्राइट सनलाइट में रखा तो उसने कहा कि बबल्स, इट शोड द बबल्स अराउंड द ग्रीन पार्ट, इन द डार्क देवर नो बबल्स। लेटर ही आइडेंटिफाइड के बबल्स जो हैं वो क्या हैं, वो ऑक्सीजन है। इट मीन्स प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दे विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, एंड इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिलीजेस द oxygen, and this process does not takes place in the darkness. So he showed that it is only the green part of the plant that releases the oxygen. So this was a famous experiment which was performed by Jan Ingenhousz. Next is experiment by Julius von Schack. Julius von Schack का जो experiment है that is 1854. He proved that glucose is produced when plants grow and it is usually stored as a starch. ठीक है, so it was not until about 1854 that Julius von Schack ने students he provided the evidence for the production of glucose. He said जब plant grow कर रहे हैं, photosynthesis कर रहे हैं, तो जो food बन रहा है that is the glucose, and but this glucose is usually stored as a starch, right? And then he later उसने ये स्टडी किया कि जो ग्रीन सब्सटेंस है इन द प्लांट दैट इज़ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड दिस क्लोरोफिल विच इज़ द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट इट इज़ लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज़, एंड दैट स्पेशल बॉडीज़ जो है लेटर ऑन हमने इन स्पेशल बॉडीज़ को क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला विद इन द प्लांट सेल्स, right? He found that green parts in the plant is where the glucose is made. So glucose कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ green part में बन रहा है। So green part जो है वो photosynthesis कर रहा है और glucose बन रहा है, and that the glucose जो photosynthesis होगा तो glucose बनेगा, but glucose is usually stored in which form? It is stored in the form of the starch. Okay, so this was the experiment done by Julius von Schack, that is 1854. Next students हमारे पास experiment आ गया that is by T.W. that is Engelmann. So this experiment student, इसने Engelmann ने क्या करा, उसने एक बहुत ही एक important experiment है, interesting experiment है, that was done by T.W. Engelmann
1843 से 1909, he used a prism. By using a prism, he split the light into the स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेंट्स. हमें पता है कि जब लाइट प्रिज्म में से पास होता है तो लाइट का जो है वो स्पेक्ट्रम बन जाता है. स्टूडेंट्स, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वर्ड दैट इज विबग्योर, राइट? So this is spectrum. What is VIBGYOR? So it is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, right? So he split the light using a prism into the spectral component and illuminated a green alga, cladophora. Student, उसने cladophora green alga use किया. उस algae को उसने एक ऐसे suspension में रखा जिसमें कि aerobic bacteria था. And bacteria was used to detect the site of oxygen evolution. कि अगर हम किस वेवलेंथ के लाइट दे रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट. इसमें हमने प्रिज्म के साथ, जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगा तो उसका स्पेक्ट्रम बन गया. उससे हमने इल्यूमिनेट किया ग्रीन एल्गा. ग्रीन एल्गा कौन सा यूज़ किया? क्लैडोफोरा. और क्लैडोफोरा जो था दैट वाज प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया हमने यूज़ किया बिकॉज बैक्टीरिया वाज यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन. देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, very interesting experiment, he observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. So उसने ये देखा कि ये देखो ये blue है and this is the red and this is the blue region. तो what he observed, एंजलमैन ने देखा कि जो बैक्टीरिया कहाँ पे accumulate हो रहा है, यहाँ पे जो कि ब्लू रीजन है और यहाँ पे जहाँ पे कि रेड रीजन है. सो बैक्टीरिया एक्युमुलेट हो रहा है मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. So a first action spectrum of photosynthesis was thus described. तो ये रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ये उसने ऑब्जर्व करा कि जो स्पेक्ट्रम में जो ब्लू पोर्शन है और स्पेक्ट्रम में जो रेड लाइट है तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो एक्युमुलेट हो रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो रहा है. इट मीन्स क्लैडोफोरा जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है और बैक्टीरिया इज एरोबिक बैक्टीरिया, वो मल्टीप्लाई कर रहा है. सो बैक्टीरिया कहाँ एक्युमुलेट होगा? बैक्टीरिया एक्युमुलेट इन द ब्लू एंड द रेड लाइट रीजन. सो आप यहाँ पे ब्लू पोर्शन के ऊपर देख सकते हो और यहाँ पे रेड पोर्शन के ऊपर देख सकते हो. सो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अभी हम स्टूडेंट करेंगे कि व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम और व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बढ़ाऊंगी कि कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि कौन सा मतलब जो पिगमेंट जो है वो कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? उसके बाद इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस. एक्शन स्पेक्ट्रम होता है कि कौन सी वेवलेंथ पे जो हमने देखा कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो लाइट्स हैं उनका वेवलेंथ अलग अलग है. सो एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है या कौन सी वेवलेंथ जो है उस पे फोटोसिंथेसिस जो है वो लीस्ट होगा. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ का जो लाइट है वो पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? ओके. Then process of photosynthesis, students, we have already seen this diagram. So by the middle of 19th century, it is discovered that plants use light energy. So plants are using sunlight, that is the light energy, to make the carbohydrates from the carbon dioxide and from the water. So carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, these are the raw materials. So plant use them and they make the carbohydrates, right? So ये empirical equation है for the process of photosynthesis, that is CO2 plus water in the presence of light. They are forming CH2O plus O2, where CH2O जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ द ग्लूकोज. सो वो हमारा जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, ग्लूकोज मैंने अभी आपको बताया कि इवन जो जूलियस वॉन शैक ने भी एविडेंस दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो. सो इट इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, राइट? ओके. देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट बाय this is the next experiment by the Cornelius van Niel. So this is 1970 से 1985 experiment by Cornelius van Niel. So he was a microbiologist. He conducted some studies in purple and green bacteria. ये भी बहुत important experiment है students. So ये एक milestone contribution है
to the understanding of photosynthesis, and that was made by a very famous microbiologist, and that is Cornelius Van Niel, 1897 to 1985, who based on his studies on the purple as well as the green bacteria, and he demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. सो आप ये इक्वेशन देख सकते हो स्टूडेंट्स. ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो CO2 को रिड्यूस कर रही है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. So this is the equation. You can see H2A plus CO2 in the presence of light, it results in the formation of 2A, और ये हमारा carbohydrate बन रहा है and the water. Now next, in plant water is the hydrogen donor and it is oxidized to oxygen. Green plants में जो आपका हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वाटर, और वाटर जो है वो हाइड्रोजन डोनर है एंड इट इज़ ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते. दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्पल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, दे यूज़ H2S इंस्टेड ऑफ वाटर, दे यूज़ H2S एज अ हाइड्रोजन डोनर. सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर or sulfate and no oxygen is produced. So वो organism though they do not release the oxygen during the photosynthesis, so here when H2S जैसे है instead is hydrogen donor जो है पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर्स क्या है, दैट इज H2S. ठीक है, सो ये हाइड्रोजन डोनर है और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ नॉट द ऑक्सीजन. सो उसने इन्फर किया दैट ऑक्सीजन इवॉल्व, ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एक माइलस्टोन है फोटोसिंथेसिस के अंदर कि द ऑक्सीजन विच इज़ इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है. सो ये जो एक्सपेरिमेंट नील वैन नील का एक्सपेरिमेंट था, इसने कंफर्म किया, इन्फर किया कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट, इट कम्स फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से हमने इसको प्रूव भी किया. ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो यू कैन सी दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वी आर गेटिंग C6H12O6, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द वाटर. सो इससे हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से ये प्रूव कर दिया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बाय द ग्रीन प्लांट्स से, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द वाटर and not from the carbon dioxide. Okay, now okay students, so these are the various experiments. अभी जो हमने बहुत सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड दे लेड टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द photosynthesis. So student, our next topic is the photosynthesis site and pigment. अब हमारे पास ये important है कि where does the photosynthesis takes place. ठीक है, हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात किया कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमारा क्लोरोफिल हमें रिक्वायर्ड है और जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च प्रोड्यूस होगा. सो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, सो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. तो ग्रीन प्लांट का जो है एक्चुअली हमारा फूड फैक्ट्री जो है वो क्या है. स्टूडेंट्स, हमने +1 में हमने एनाटमी में देखा कि जो लीफ है, लीफ में जो मीजोफिल सेल्स हैं, द मीजोफिल सेल्स हैव फूड फैक्ट्रीज एंड दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है एक्चुअली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड वी रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स ऑल्सो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी विल स्टडी देम वन बाय वन.
First of all, the site of photosynthesis. Students, this is structure of the chloroplast. We have already, let's revise it once again. You have already done it. So this chloroplast जो है वो membrane bound cell organelle है. Chloroplast has outer membrane and inner membrane. राइट स्टूडेंट, सो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है. इनसाइड जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा हमने देखा, फ्लूइड स्ट्रोमा है. जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. राइट, देन these you can see these piles and these piles are known as granum. ग्रैनम क्या है? ये एक स्टैक है जिसमें 2 से लेके 100 थैलाकॉइड्स होते हैं. सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये डिफरेंट थैलाकॉइड्स हैं जो पाइल्ड हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये इस तरह से थैलाकॉइड्स अरेंज होके क्या बना रहे हैं? ग्रैनम बना रहे हैं. सो ग्रैनम जो है वो एक स्टैक है ऑफ 2 to 100 थैलाकॉइड्स, सो विच लेड इन पाइल्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अनदर. सो थैलाकॉइड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. देन यू कैन सी, देन इन उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा कि बिसाइड दैट देर आर स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स ऑल्सो. जो बड़े वाले थैलाकॉइड्स थे, लार्ज थैलाकॉइड्स थे, वो उनको हम स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स कहते हैं. ये स्ट्रोमा लेमिलीज हैं. ठीक है, दे आर लार्जर इन साइज एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. सो वो स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स थे. सो अगर मैं आपको एक बारी फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपके ये ग्रैनम है, दिस इज अनदर ग्रैनम. सो दीज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ लेमिलीज. सो ये जो है यहाँ पर ये जो ग्राउंड मटेरियल है ये क्या है? स्ट्रोमा है. सो स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं. सो दिस स्ट्रोमा हैज़ ऑल द एंजाइम विच इज़ नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है. राइट, सो सर्कुलर डीएनए हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट का. और ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मैसिव मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ लेमिलीज, और इनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं. दे रन पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, सो लार्जर जो थैलाकॉइड्स होते हैं उनको हम, ये जो हैं ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स हैं, और जबकि ये जो छोटे वाले होते हैं जो पैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, ये दीज आर ग्रैना थैलाकॉइड्स. ठीक है, सो ग्रैनम थैलाकॉइड्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, वो ग्रैनम बना रहे हैं. राइट, सो डिफरेंट, अभी हम जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो थैलाकॉइड्स हैं, मेन फंक्शन ऑफ थैलाकॉइड क्या है? इट इज़ टू परफॉर्म द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जो कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो भी हम स्टडी करेंगे. सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. Chloroplasts present in the wall of the mesophyll cells of the leaves, they help to get the optimum quantity of the incident light. इंसिडेंट लाइट जो सनलाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो है वो कहाँ किसके पास आएगी? जो मीजोफिल सेल हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट इस तरह से अलाइन होते हैं अलोंग द वॉल ऑफ द मीजोफिल, इस तरह से अलाइन है सो दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सनलाइट, क्योंकि उससे जो जितना रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए वो इस तरह से अलाइन है सो दैट दे कैन गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो क्लोरोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेन सिस्टम है, ग्रैना है, स्ट्रोमा लेमिलीज है और फ्लूइड स्ट्रोमा है. ईच ग्रैनम जो है उसके पास ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, अभी मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था, उनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं. एंड थैलाकॉइड्स जो हैं दे हैव व्हाट इज नोन एज द लीफ पिगमेंट्स. ओके, सो the membrane system, it traps the light energy and synthesize the ATP and NADPH. सो स्टूडेंट्स, ये जो ATP है और NADPH2 है, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2. ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हो रहा है. और जो स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं. दे इनकॉर्पोरेट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग द शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स द स्टार्च एंड इट इज़ नोन एज द डार्क रिएक्शन. स्टूडेंट्स, जो हमने ATP NADPH2 लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास आया, सो वो NADP और ATPs जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इन द डार्क रिएक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फूड. राइट स्टूडेंट्स, सो जो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2. राइट, दिस ATP एंड NADPH2, तो उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो लाइट रिएक्शन के बाद, लाइट रिएक्शन से हमें ATP और NADPH2 बनेगा. स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ द फूड दैट इज द शुगर.
तो शुगर विच इन टर्न्स फॉर्म्स द स्टार्च। तो पहले वाली जो रिएक्शन है वो लाइट ड्रिवन रिएक्शन है, डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम उसको लाइट रिएक्शंस बोलते हैं। और जो बाद वाली डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, बट दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उस पर वो सेकेंड पार्ट जो है वो डिपेंड करता है, उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। बट स्टूडेंट, इट डजेंट मीन कि इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। बट क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जब होता है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं NAD, ATP एंड NADPH2, सो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सेकेंड रिएक्शन डार्क रिएक्शन जो है उसमें हम यूज़ करते हैं, राइट। सो इट डजेंट मीन कि वो डार्कनेस में है और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। सो अभी हम इसके डिटेल पढ़ेंगे, द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन क्या हमें दे रही है, ATP और NADPH2 बना रहा है। सो इससे जो है वो डार्क रिएक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है और फूड बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, so let's study now about the various pigments, students, which are involved in the process of photosynthesis. So बहुत सारी pigments जो कि which are involved in the process of photosynthesis, they are known as photosynthetic pigments. तो बहुत सारी pigments हैं। आप यहाँ पे एक मैंने बहुत ही beautiful leaves यहाँ पे रखी हैं, आपको बहुत तरह के pigments दिख रहे हैं। ऑरेंज यू कैन सी, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लूइश ग्रीन दिख रहा है। सो पिगमेंट्स जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। लाइक यू हैव क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, ज़ेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स हैं। सो लेट्स स्टडी दैम। Pigments are substances that have ability to absorb light at a specific wavelength. जो अभी मैंने आपको बताया, जब हमने स्पेक्ट्रम देखा तो स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइट्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ हैं। सो पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं लाइट की उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो क्रोमेटोग्राफी शोज द फॉलोइंग लीफ पिगमेंट्स इन द क्रोमेटोग्राम। अभी आपने यहाँ पर क्रोमेटोग्राम देखा। सो दिस इज़ अ क्रोमेटोग्राफी में एक क्रोमेटोग्राम है। यू कैन सी क्लोरोफिल B है, देन क्लोरोफिल A है, ज़ेंथोफिल है एंड दी कैरोटीनॉइड्स है और कैरोटीन। Chlorophyll A, student, it is bright or blue green in color. Chlorophyll B is yellow green. Xanthophylls are yellow. Carotenoids are yellow to orange yellow. सो मेन जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल A है, दैट इज़ क्लोरोफिल A जो है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्लोरोफिल A। अदरवाइज जो आपका क्लोरोफिल B है, ज़ेंथोफिल है एंड कैरोटीनॉइड्स हैं, दीज आर नोन एज असेसरी पिगमेंट्स। ठीक है। सो मैक्सिमम जो अभी हम देखेंगे कि कौन सी जो मेजर पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करेगी, दैट इज़ क्लोरोफिल A। एंड क्लोरोफिल B जो है, ज़ेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, दे आर नोन एज accessory pigments. Why they are accessory pigments? Because they absorb the sunlight, उसको लाइट को absorb करेंगे and they transfer the energy to the chlorophyll A, और क्लोरोफिल A को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। सो दे आर नोन एज असेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल A जो है दैट इज़ द मेन पिगमेंट, मेजर पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। सो दूसरी जो पिगमेंट्स है दैट इज़ क्लोरोफिल B है, देन ज़ेंथोफिल्स हैं एंड देन यू हैव कैरोटीनॉइड्स। दीज पिगमेंट्स आर नोन एज असेसरी पिगमेंट्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल A, राइट। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल A फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, से भी क्लोरोफिल A जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल A जो क्लोरोफिल B है, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो क्लोरोफिल A है वो एक्चुअली ब्लूइश ग्रीन कलर का है और क्लोरोफिल B हमने देखा ये येलो ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। सो क्लोरोफिल A जो होता है उसमें कार्बन 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है, वेयर एज क्लोरोफिल B जो है उसमें कार्बन 3 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B जो है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द कलर या जो उनका ग्रुप कार्बन 3 पे जो उनका ग्रुप है उसके बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल फार्मूलाज वी कैन डिस्टिंग्विश देम। Now this is clear, students, that carotenes and xanthophylls, they all are known as accessory pigments. सो दिस यू कैन सी, दिस इज डार्क वाला जो है ये क्लोरोफिल A है और वाइट वाला जो है वो क्लोरोफिल B है। सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है दैट इज क्लोरोफिल A एंड इट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल ए है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी हम करेंगे स्टूडेंट ये प्रोसेस को। और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अभी हम जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम जो है उसमें 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का जो रेंज है स्पेक्ट्रम का। सो ये पोर्शन का स्पेक्ट्रम है। इस पोर्शन को हम एक ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम इसको बोलते हैं। इसको हम कहते हैं PAR, पार। पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सो ये स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा भी है जो कि विजिबल नहीं है। जैसे इन बियॉन्ड अगर रेड जाते हैं तो वो इंफ्रारेड है, दैट इज़ नॉट विजिबल। सिमिलरली जो अल्ट्रावायलेट्स हैं दे आर नॉट विजिबल। तो वेवलेंथ जो होता है, जो कि विजिबल पोर्शन का वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो पोर्शन है स्पेक्ट्रम का, इसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, राइट। सो इसका मतलब जो विजिबल लाइट है इट लाइज बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में विजिबल लाइट है। सो मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ जो है फोटोसिंथेसिस के लिए दैट इज़ द रेड लाइट, राइट, ठीक है। अदरवाइज जो ग्रीन लाइट जो है स्टूडेंट्स उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा। नाउ यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, जो हमारा पिगमेंट है, वो पिगमेंट कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, क्वांटिटी ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ पिगमेंट, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लाइट of different wavelengths which is absorbed by a pigment, right? So this is absorption spectrum. And what is the action spectrum? Action spectrum होता है, ये graphic representation होती है of the rate of photosynthesis at different wavelength of light. अगर हम प्लांट को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में एक्सपोज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट एफिशिएंट वेवलेंथ जो है दैट इज रेड लाइट एंड ग्रीन इज द लीस्ट इफेक्टिव, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाता है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक्शन इन्वॉल्व है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगा, कितना होगा। सो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है दे कोइंसाइड क्लोजली, शोइंग दैट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एट द ब्लू एंड द रेड रीजन। तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है किसका, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, देन क्लोरोफिल बी का है और कैरोटीनॉइड्स हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, आप पीक देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो किस वेवलेंथ पे हो रही है। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि 400 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर के बीच में जो आप देख रहे हो कि जो पीक है वो ऊपर आपको हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो लीस्ट हो रही है, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ग्राफ ऑल्सो शोज दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट विच इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। यू सी दिस सेकेंड ग्राफ, ये आपको एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हो कि ये जो आपका वेवलेंथ है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम है, और जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पर जो है लीस्ट फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड ग्राफ विच इज ऑल्सो शोइंग यू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम जो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उस पर हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम देखें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट पिगमेंट्स मेनली क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू as well as in the red region of the spectrum, ठीक है। ब्लू रीजन और जो रेड रीजन है स्पेक्ट्रम का, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। सो एक्चुअल जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। सो बोथ क्लोरोफिल ए और बी जो हैं दे आर शोइंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन द ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट स्टूडेंट्स। ओके,
That's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Students, आज हमने अपना photosynthesis जो है वो introduce किया. What is photosynthesis and why photosynthesis is important for us. Then we studied about many interesting experiments which are related to photosynthesis, and in the last we studied about the site of photosynthesis, that is the kitchen of the cell, that is the chloroplast where the light and the dark reactions of the photosynthesis takes place. The light reactions, they are taking place in the thylakoids, and the dark reactions, they are taking place in the stroma. We will study about the light and the dark reaction in the further lectures, then it becomes very clear to you. And in the last we studied about the important pigments, the main pigments and the accessory pigments which are participating in the process of photosynthesis. So thank you very much students. Thanks for watching. Have a nice day.